Hello everyone. So this is Kruti Gandhi. I'm the face behind this page, and as I mentioned yesterday that I'm starting a series called Moms Making Waves, where I'm going to invite my co-business owners, co-business partners, and business mentors from different part of the world to share their success stories, their success journey, their challenges and obstacles if they have faced during this business. So it's basically awakening program to create the awareness among the people who are still sitting on the fence and not able to take any decision, maybe because of their personal reasons or maybe any external reasons. So through this show, I would like to make an effort to inspire and encourage them to think out of the box, uh, to let them think that there is a world of possibilities and opportunities outside waiting for them. It's just they who need to take first step and to come out of the comfort zone, because life, the life always starts when you come out of the comfort zone. So as a part of this series today, I have a very special guest. She is my coach as well, and I would like you to hear her success story from her own voice. So without further delay, let's welcome Shikha Chawla. She is from Toronto, Canada, and hello Shikha, how are you? हेलो कृति जी, मैं बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया. Thank you so much for accepting my invitation at such a short notice. माय प्लेजर कृति जी, माय प्लेजर। शिखा जी, मेरे व्यूअर्स, शायद मेरे पेज पर आप पहली बार ही आप आ रहे हो, तो मेरे व्यूअर्स को आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन भी देना एंड योर बिग वाई टू ज्वाइन इनटू दिस बिजनेस. For sure. So, hello everyone. My name is Shikha and I live in Ontario, Canada with my family. Originally, I am from India and by like my education is I did my degrees in accounting and graphic designer, but I never got a chance to pursue my career in those two fields. So, because before this business, I was at at a stay at home mom, and I did feel like मैंने करी हैं other jobs, but part time जब जैसे time मिला तो मैंने करा है. But I am doing this business from past 3 years now, and successfully running this business. So the biggest reason to join this business, सो मेरा जो सबसे, क्योंकि यूजुअली आई अंडरस्टैंड कि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो मोस्टली मॉम्स का रीजन होता है कि बच्चे, मेरा भी था कहीं ना कहीं, बट आई कांट से कि माय बिगेस्ट रीजन, क्योंकि मेरा जो बिगेस्ट रीजन था मैं खुद थी बिजनेस करने के लिए. बिकॉज मैं शुरू से ही, जब बिफोर मैरिज आई डिड जॉब, लेकिन आफ्टर मैरिज मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे जॉब या कुछ ऐसा करना है, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं करियर ओरिएंटेड गर्ल नहीं थी स्टार्टिंग से ही. मुझे सिंपल था कि मुझे सिंपल लाइफ चाहिए. सो तो उसके, लेकिन जैसा आप सोचते हो हमेशा वैसा नहीं होता, राइट? सो और कुछ कई चीज लोगों को होता है ना कि जानबूझ के होता है कि हाँ, अगर खाली बैठे हैं, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का, अगर वही चीज बात हुई मेरे साथ भी. सो मुझे मेरे बच्चे जब तक छोटे थे, आई ट्राइड फ्यू जॉब्स उनको, बट मुझे वो जॉब्स भी ड्रॉप करनी पड़ी बिकॉज ऑफ मेरे बच्चों दोनों को हेल्थ इश्यूज हो गए थे. But again, we are surviving. My husband was earning that time, so he's earning now, right now too. But तब तक वो अर्न कर रहे थे, तब तक हमारा चल रहा था. बट जैसे जैसे टाइम कनाडा में बढ़ता चला गया, तब वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई, एक्सपेंसेस बढ़ते गए, और साथ ही साथ ड्रीम्स बढ़ते गए, नहीं कि अब घर भी होना चाहिए, इतना टाइम हो गया कनाडा में, और हाँ कार भी लेनी है. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट अर्निंग एक ही थी, पूरा हो नहीं सकता था. सो मुझे लगा कि ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, स्लोली स्लोली हो सकते हैं कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा. बट वो होता है ना कि जब तक खुद से हम कुछ करेंगे नहीं, तब तक तो भगवान भी कुछ कहेगा कि ठीक है, इन बंदे को कुछ नहीं करना मुझे. Exactly. तो ठीक है, तो फिर मुझे था कि मेरे बच्चे दोनों स्कूल जाने लगे थे, तो मुझे ये होता था कि आई हैव टू डू समथिंग. मुझे कुछ तो ऐसा करना है जो कि जिसके साथ मैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर सकूं, और मैं अपने लिए भी कर सकूं, क्योंकि मेरे को डिप्रेशन होने लगा था. मेरा कॉन्फिडेंस जो था घर बैठे बैठे, वो मैं लूज करती जा रही थी. मुझे डर लगता था एक कदम अकेले भी घर से बाहर निकालने से.
तो या मुझे लगा कि कहीं न कहीं मैं अपने अपनी लाइफ़ के साथ सही नहीं कर रही हूँ और जिसका इफ़ेक्ट मेरी फैमिली पे भी पड़ेगा। सो देन आई स्टार्ट माय रिसर्च कि मुझे कुछ ऐसा फाइंड करना है कि जो मुझे मिल जाए। हाँ, मुझ मेरे को कुछ ऑनलाइन जॉब्स मिली जो कि मैंने ट्राई करी, बट नो, आई वाज़न्ट हैप्पी। मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छी नहीं थी, बट मैं खुश नहीं थी। क्योंकि वो जो चाहिए था मुझे, वो मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था कि मुझे बार-बार यही होता था कि नहीं, यू नो, दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ या नॉट फॉर मी। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल सके, क्योंकि आई डोंट नो यू गाइस से लाइक हेरिडिटरी कह लो या कैसे, क्योंकि मेरे पापा में, मेरे ब्रदर में, मेरे मतलब मुझ में भी, हम लोगों में ऐसा है कि अ, हम अपने टाइम के अकॉर्डिंगली करेंगे, किसी के अंडर नहीं कर सकते हैं काम। थोड़ा सा या एक मैंने स्टार्टिंग से एक ऐसा बना हुआ था। या बट अगेन गाइज, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे बिजनेस के बारे में तो मेरे दूर दूर तक कहीं कोई भी दिमाग में नहीं था, क्योंकि कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। हमारे में तो यही होता है कि सिर्फ जो बॉयज है वो ही बिजनेस कर सकते हैं, लड़कियां एग्जैक्टली, नहीं। अभी तो भी हमारा वही माइंडसेट रहता है हमारे कंट्रीज में। हाँ, तो इसलिए मैं भी जॉब ही देख रही थी, बट आई कम केम अक्रॉस टू दिस बिजनेस एंड मैंने इसके बारे में पूरा रिसर्च किया, बट लाइक अगेन दिस इज माय बिगेस्ट वाई कि मैं खुद इस बिजनेस को, मेरे को चाहिए था खुद अपने लिए, ताकि मैं अपना कॉन्फिडेंस वापस पा सकूं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वाई। सेम हियर विथ मी, मुझे भी ऐसा ही था। लाइक जब हम कनाडा मूव हुए थे, मैं 2 साल पहले ही कनाडा अपने फैमिली के साथ मूव हुई। तो उससे पहले मैं इंडिया में 11 साल तक जॉब करती थी। बट हाँ, वहां पे कभी जॉब करना मुझे इतना बॉदर नहीं लगा, 2 बच्चे थे मेरे शादी के बाद, बट फिर भी एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी स्मूथ। मे बी बिकॉज की एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली में मैं रहती थी, और वहां पे डोमेस्टिक हेल्प भी मुझे जब चाहिए तो मिल जाती थी। मिल जाती बट थी। यहाँ आके पता चला कि रियल चैलेंजेस क्या है। सपने तो बहुत बड़े लेकर निकले थे, लाइक जब भी हम इमिग्रेट होते हैं तो हमारे भी कुछ लाइक वाई होते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं कि हम वहाँ पे अपना करियर बनाएंगे, वी विल बी फाइनेंशियली साउंड, हम ये करेंगे वो करेंगे। बट यहाँ जब आते हैं तब द रियलिटी हिट्स वेरी बैडली। और तब पता चलता है कि, और ये ऐसा नहीं है कि हमने तो शुरू में दोनों ने जॉब भी शुरू करी थी, बट हाँ, मेरे बच्चे बड़े थे एंड माई डॉटर इज जस्ट अबाउट टू गो टू द यूनिवर्सिटी। सो एज वी ऑल नो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन हमें खुद से ही मैनेज करना होता है, दैट इज नॉट फ्री। सो एंड इट्स अ बिग पार्ट ऑफ अवर पे चेक। तो Paychecks. अभी हमने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि पेचेक्स आर नॉट जस्ट सफिशिएंट, इट इज जस्ट फॉर पेइंग द बिल्स। बट बियॉन्ड दैट हमारे पास बहुत कुछ होता है कि लाइक हमें बच्चों के लिए भी सेव करना होता है, अपने बैक होम ट्रिप के लिए करना होता है, पेरेंट्स के लिए सेव करना होता है, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी होती है। एंड दैट इज वो तो मुझे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था फ्रॉम दिस पे चेक। तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है। लाइक हमारे को भी पहले, जब जब मैं भी जब कनाडा आई, मुझे मेरे माइंड में भी कभी ये नहीं था कि सेविंग, मुझे मतलब नहीं था एग्जैक्टली, इतना। तब तक मेरी एज भी मतलब लाइक हाँ, तब इतनी छोटी थी, तो मुझे नहीं समझ में आया। बट जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई ना, तब थोड़ा सा लगने लगा। फिर भी मुझे यही था कि चलो कोई बात नहीं ना, एक तो अर्निंग आ रही है ना, इट्स ओके। यस, अपना लाइक अपनी लाइफ अगर स्मूथ चल रही है तो व्हाई नॉट। वही कंफर्ट जोन वाली बात आ गई थी, एग्जैक्टली। मुझे छोड़ना नहीं था और वो। फिर आपको एक एक लेवल की लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी है, सो एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल जस्ट फ्रॉम द पेचेक फॉर यस, दैट। बिकॉज इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी देन यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो ये तो हमें पता ही था। बट फिर भी जैसे तैसे करके शुरू किया, क्योंकि बिजनेस तो सुन के ऐसा लग रहा था कि मे बी बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्टाफ चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, पता नहीं कौन सी डिग्री चाहिए। तो नहीं दैट होता। वाज नॉट ऑफ माय चॉइस। तो बट हाँ, फिर जॉब शुरू कर दी। बट जॉब शुरू करने के बाद भी ये रहा कि हम सारे फैमिली के साथ मूव हुए थे ना, तो बच्चों के भी बहुत चैलेंजेस थे। जैसे हमारे तो थे, बट बच्चों के लिए भी थे। जैसे एजुकेशन सिस्टम पूरा नया था, वेदर चैलेंजेस था, क्योंकि बच्चे वहां पे आउटडोर स्पोर्ट्स में बिलीव करते थे। अब यहाँ आके लाइक एकदम हैव टू चेंज देयर मेंटालिटी एज वेल। तो हाँ, मार्च ब्रेक आते थे, समर ब्रेक आता था, लाइक क्रिसमस ब्रेक भी होता था, बट बच्चे घर पे अकेले रहते थे और हम दोनों जॉब पे जाते थे। तो अगेन दैट वाज वेरी वेरी डिप्रेसिंग फॉर देम एज वेल, कि वो लोग पूरे पूरे दिन घर में ऐसे बंद, घर में बंद है, और लाइक हम कुछ भी बच्चे नहीं कर होते पा रहे थे। हैं, एंड बच्चे बड़े दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट कि नहीं, मुझे अब ये नहीं करना है। आई आई थिंक कि मैंने इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं मूव हुई। दिस इज नॉट द वे टू लिव द लाइफ, और मैं इसको ज्यादा लंबा तक नहीं खींच पाऊंगी। सो दैट्स द टाइम आई स्टार्टेड टू लुक फॉर सम अदर ऑप्शंस। बट वही हुआ कि मैं भी वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन ही ढूंढ रही थी कि हाँ, मैं घर पे रहूंगी और घर को मैनेज करूंगी, ताकि मेरे बच्चे भी खुश, मैं भी खुश। कुछ और हुआ।
और किसी का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, और थोड़ी सी अर्निंग आ जाएगी तो आई कैन कंट्रीब्यूट इन माय हाउस होल्ड इनकम एज वेल। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे को लगता है अब मुझे आपकी बातें सुन के लग रहा है कि जो इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो एज एन इमिग्रेंट अगर किस मतलब यस। अपनी जाते हैं तो उनके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि वो या सिर्फ ये नहीं है कि आपके खुद के लिए चैलेंज है, क्योंकि बच्चों के लिए भी चैलेंज हो जाता है वो फिर बहुत बहुत उनको भी। चले। बच्चों की एज ऐसी होती है, उनको मैनेज करना आई थिंक सो इट्स रियली हार्ड, या है ना? क्योंकि जब मैं आई थी तब मतलब मेरे दोनों बच्चे यहीं पे बोर्न हुए, तो मेरे पास चैलेंज था, बट मुझे अपने आप को मतलब ऐसा भी कुछ बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, क्योंकि जब मैं कनाडा से आई तो सब कुछ मतलब था, मेरे हस्बैंड के पास ऑलरेडी जॉब थी, ठीक है, ऑब्वियसली अपार्टमेंट था, सब कुछ था। सो उसके बाद फैमिली जैसे एक्सटेंड होने लगी तो इसलिए हमारी, बट आई नाउ आई गॉट इट कि यस यू नो, आप जो लोग बच्चे बड़े हो जाते हैं तब एज एन यस। इमिग्रेंट उनके लिए बहुत या बड़ा चैलेंज है। इट्स अ वेरी बिग आउटगो ऑफ योर एंटायर इनकम। यस। तो वो, और हम बच्चों को नहीं दे सकते ना, जैसे हमारी वो लाइक हमारा वो संस्कार ही, लाइक हमारी वो है ही नहीं कि हम बच्चों को बोले कि आप खुद लोन लो और खुद खुद वेरी। जॉब करो और हाँ, खुद पे करो। हाँ, बिकॉज इफ वी आर इन्वेस्टिंग सच ए ह्यूज अमाउंट इन देयर एजुकेशन, देन हम क्यों उसको पूरा का पूरा टाइम हम उनको उनकी पढ़ाई में देना चाहते हैं, उनकी एजुकेशन पे देना चाहते हैं, ना कि वो जॉब करके अपना लोन मैनेज करें। वो हाँ। एक बार अच्छा सा एजुकेशन ले लेंगे, देन इट्स वेरी इजी फॉर देम टू रीपे द लोन, बट फॉर अस इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। या डेफिनेटली, बिकॉज आखिरकार एट द एंड जब उन्होंने चाहे यूनिवर्सिटी के, आखिरकार उन्हें जॉब्स या बिजनेस ही करने हैं, तो एग्जैक्टली। व्हाई शुड वी यू नो पुट द दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन देयर शोल्डर्स राइट नाउ। और हमारा बिकॉज ये भी एक वाय था कि हम बच्चों के, जब बच्चे पढ़ाई करके या एजुकेशन लेकर बाहर निकले, तो वी डोंट वांट कि उनके ऊपर कोई लायबिलिटी या कोई भी लोन या कोई भी डेट हो, सो दैट दे कैन फ्रीली स्टार्ट देयर ओन लाइफ विदाउट एनी डेट। डेफिनेटली आई टोटली एग्री विद यू, डेफिनेटली। तो शिखा, ये चीज एक और भी मैंने नोटिस करी कि जैसे हम जिस बिजनेस में आना चाहते हैं, उस बिजनेस में आने से पहले भी जैसे ना एक मेंटल स्ट्रगल होती है कि हम जब भी, जैसे अपॉर्चुनिटी तो हमारे सामने दिख गई, जैसे आपको भी ये प्लेटफॉर्म दिखा, मुझे भी ये प्लेटफॉर्म दिखा, बट हमारे मन में कुछ चैलेंजेस, जो एक मेंटल वॉर चलता है कि क्या हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मेरे में तो ये चीज नहीं है। जैसे कि इस बिजनेस की बात करें तो जैसे मैं कैमरा शाय थी, ठीक है, मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई नॉलेज भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या ऐसी ऐसी ट्रेनिंग होगी कि मुझे सब कुछ सिखा देंगे, मुझे सब कुछ आ जाएगा। तो वैसे आपकी भी कोई चैलेंजेस रही होंगी? फॉर श्योर, तो मैं आपके इस क्वेश्चन को दो चीजों में डिवाइड कर देती हूँ, वन इज इंटरनल एंड द अदर इज द एक्सटर्नल चैलेंज। सो वाह। फॉर श्योर थे, नो डाउट कि नहीं थे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू माई स्टोरी कि मैं किस मतलब मेरा क्या माइंडसेट क्या था। सो फॉर श्योर मेरे इंटरनल चैलेंजेस जो मैं कहूँगी जो थे मेरे लिए स्पेशली, लाइक मैं कॉन्फिडेंस नहीं थी, ठीक है। मैं एक एक मैंने ये शायद बात कभी नहीं किसी से कही, आज मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं कनाडा आ रही थी ना, तो उससे पहले मेरे मन में ये फियर था कि पता नहीं मैं उनके जैसा बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, पता नहीं वो लोग मेरी मेरी बात को समझ पाएंगे, मेरे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था। हाँ। जब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मेरा वीजा आया था और जब मेरे टिकट्स बुक हुई थी आने के लिए, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि इफ यू वांट कि हाँ अभी थोड़ा सा वेट करके चले जाइए, बिकॉज आई वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगी, लेकिन जिस दिन मैं प्लेन में बैठ रही थी ना, उस दिन मेरे इतना डर था, मेरे को इतना डर लग रहा था, बिकॉज मुझे यही था कि वो मेरी कंट्री है, मेरे वहां पे लोग नहीं होंगे जो मतलब ऑब्वियसली मेरे सारा कुछ नया था, है ना? ऑफ वो कोर्स मेरे लैंग्वेज नहीं आपकी है ना, लोग आपके हैं ना, कल्चर आपका है। कि ऐसा नहीं था कि आई एम नॉट एजुकेटेड, मेरे को नहीं आता था, बट कभी वो फ्लो नहीं था, हाँ। ठीक है। और मुझे मेरे अपने लोग नहीं दिखेंगे, तो और मेरे को ये सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था। हम्म। और जब रही बात इस बिजनेस से रिलेटेड, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, क्योंकि मैं घर बैठे एज आई ऑलरेडी मेंशन कि मुझे बाहर अकेले जाने में भी लाइक मुझे डर लगता था, मुझे ये होता था कि मैं तो अपनी बात नहीं समझा पाऊंगी किसी को। हाँ। आई ऑलवेज कॉल माई हस्बैंड, अच्छा आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तो आ जाओ, आज बच्चों के स्कूल में जाना है तो आ जाओ। तो ये एक सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था, इस चैलेंज से ओवरकम करना हम्म। बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरी चीज मुझे ये होता था कि मैंने लाइक सब कुछ करा है, ठीक है, बट एक लाइक ऑब्वियसली पर्सनल ग्रोथ, लाइक मुझे सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं आता था, ठीक है। हम्म। मेरा तो मैं जब कनाडा में आई उसके बाद मुझे इंडिया वालों ने बताया कि तेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, तो व्हाट्सएप से कॉल कर लेगा। मैंने कहा ये क्या चीज है? तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, फोन था, आईफोन था, बट आईफोन को सिर्फ फोन के लिए यूज करती थी, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा पता कि क्या
क्या बकवास है, लाइक क्या करना है इसको इतना यूज करके ना, तो सोशल मीडिया आई डोंट वांट इट। तो मेरे लिए ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे मेरे आगे कि हाँ, जिसको मुझे था कि मुझे करना है ना, Hmm. ओवरकम इसको भी। तो और ऐसे लाइक आई डिड माय रिसर्च इस, लाइक मेरे जो सारे इंटरनल चेंजेस से जिससे मैं इस बिजनेस में उतरी, ठीक है। इस बिजनेस ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतना कॉन्फिडेंस दिया, जब अब मैं कभी किसी से बात करती हूँ ना, और मैं उनको लाइक दे जब वो मुझे बोलते हैं कि शिखा लाइक यू आर सो कॉन्फिडेंट है, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं तो आपके जैसे बोल ही नहीं सकती हूँ। तो मैं उनको बताती हूँ कि यार मेरी ये 3 साल की जर्नी है। तुम Yes. लोगों लाइक तुमने मुझे आज देखा है, ठीक है। तीन Hmm. साल पहले जिन जिन उन लोगों से पूछो जिन्होंने मुझे 3 साल पहले देखा था कि Hmm. मैं कैसी थी, तो यू लाइक इट्स अ बिग डिफरेंस इन मी। Yes. ठीक है, तो जो लोग मुझे जानते हैं इस कम्युनिटी से, जो मेरे से पहले के बिजनेस में, दे कैन टेल यू गाइस कि मैं कैसी थी, और नाउ ये कॉन्फिडेंस इस बिजनेस ने मुझे दिया है। Yeah. True. कितने भी ऐसे लोग थे इस बिजनेस में, वैसे जो ओल पूरी कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव है, लेकिन हम मैं हर किसी को तो फॉलो नहीं कर सकती थी ना। तो मुझे ये था कि कुछ लोग मेरी सक्सेस के पीछे हैं, जो लाइक आई फॉलोड देम, दे इंस्पायर्ड मी अ लॉट। मैंने उनको फॉलो किया, मैंने उनकी स्ट्रेटेजीज को अपनाया कि वो क्या करते हैं एक्चुअली में, नॉट नॉट जस्ट विद द ट्रेनिंग ओनली, कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिजनेस ट्रेनिंग, आई एम लाइक अपनी लाइफ में Yeah. एक बिजनेस को किस तरीके से उन्होंने समेट के रखा हुआ है, किस तरीके से उन्होंने ग्रैब किया है, तो मैंने वो उनसे सीखा। Yeah. ठीक है, मैंने बहुत लर्निंग करी, तो मैं इन चीजों से ओवरकम कर, मेरा वो कॉन्फिडेंस धीरे 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 वापस आने लगा, और तब जाके मैं आज यहाँ तक पहुंची। So सो this दीज is this is the new Shikha we are seeing, right? डेफिनेटली लाइक नॉट ओनली इवन तो माई फैमिली, Yeah. नहीं, मेरी फैमिली मेरे को मेरे में इतना बिगेस्ट चेंज देखती है। मेरे को इंडिया से भी जब मेरे पेरेंट्स कॉल करते हैं, समटाइम दे सॉ मी ऑन यूट्यूब, Hmm. यू Hmm. नो, तो मेरी मम्मी मुझे कॉल करते हैं, यू चेंज्ड अ लॉट इन अ गुड वे, Hmm. बहुत। तो Yeah. कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि लाइक कई बार मैं अपनी सिस्टर को समझा रही होती हूँ कोई बात को, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्या कहे, कि ये ना जब भी होते हैं ना लेक्चर देने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है। बट गाइज मतलब ऐसा नहीं है, आई आई लर्न अ लॉट, मेरा इससे इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है इस बिजनेस में आने के बाद। सो आई एम ब्लेस्ड विद दिस तो बिजनेस। यही बात है ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, क्योंकि ये हमें सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं देता, ये हमें एक पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी देता है, खुद की आइडेंटिटी हमें क्रिएट करने का मौका मिलता है। जो आज तक स्टे एट होम मॉम्स थी, उनको अभी बाहर आके लाइक पब्लिक स्पीकिंग या फिर कैसे लोगों से डील करना, खुद के कॉन्फिडेंस को, फियर को कैसे ओवरकम करना, दैट्स ऑल अबाउट दिस बिजनेस। हाँ, लाइक जिसको अपनी फोटो खिंचवानी नहीं अच्छी लगती है, कई लोग होते हैं ना जिनको बहुत शाय होते हैं, हाँ। या लाइक आई आई रिमेम्बर लाइक मैं भी ऐसी थी, जब मैं वीडियो बना, अगर मुझे कोई बोलता था वीडियो में कोई 2 लाइनें ही बोलने के लिए, वैसे तो मैं नहीं बोलूंगी, अगर मैं बोल भी लूँ ना मैं सुनूंगी नहीं, क्योंकि मुझे तो अच्छी नहीं लगती अपनी आवाज। तो या तो ये फियर था अपने अंदर, और लाइक मुझे नहीं पता था मेरे पास ये टैलेंट है, इस बिजनेस की वजह से वो सारा टैलेंट निकल निकल के बाहर आ रहा है। तो एग्जैक्टली आई एम मेरे सो लिए भी हैप्पी। यही था, जब मैंने, आई थिंक यू आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, बिकॉज जब मैंने आपसे बात करी और जब आपने मुझे एक्सप्लेन किया, तब मेरा फर्स्ट सेंटेंस ही आपसे वही था कि मैं तो ये इसमें से कुछ भी नहीं करती हूँ, हाउ कैन आई डू दिस बिजनेस। और फिर भी आप मुझे सजेस्ट कर रहे थे, तो आई थॉट कि व्हाई यू वांट टू सजेस्ट मी दिस बिजनेस, बिकॉज मैंने जब आपको एक बार बोल दिया कि मैं ये सब नहीं कर सकती, आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, then still you are suggesting. But now after joining into this business, I realize that no, this can be changed, और ये हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हम लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहते हैं, सेम कम्युनिटी में रहते हैं, ट्रेनिंग को देखते हैं, कितने सारे मास्टरमाइंड्स जो हमारे पास होते हैं, लाइक हम सबको फॉलो करते हैं, एंड देन वी स्लोली एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट दोज स्किल्स इन अस, एंड वी डेवलप विद अ वेरी बेटर एंड बेटर पर्सनालिटी डे बाय डे। डेफिनेटली, बिकॉज पता है क्या है, जैसे मैंने आपने भी मुझे भी जैसे बात की कि एक कंफर्ट जोन में बन जाते हैं हम लोग, यस। है ना। जैसे कि जो लोग जॉब जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो एक उसी कंफर्ट जोन में है। अब हर कोई लाइक कर सकता है, हाँ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकता है, बट अगेन उनको या तो कोई बताने वाला नहीं होता, या या उनको लाइक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, या एग्जैक्टली। होता है कि
लाइक यार मुझ में तो इतनी हिम्मत है ही नहीं। या सो मुझे वही चीज़ें एक और पुश चाहिए होता है। देखो सब में सब कुछ होता है और हम सब कुछ कर सकते हैं, बट हमें वो पुश नहीं मिलता, कभी हमें वो राइट अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती और कभी हमें वो गाइड करने वाला कोई लाइक मेंटर, तभी तो मेंटरशिप काम आती है। मेंटरशिप काम आती है और मुझे दिस इज द बहुत रियल मेंटरशिप। बाकी तो देखो ट्रेनिंग में सब कुछ है, वी हाँ, हैव एवरीथिंग। आप कोई भी बिजनेस कर दो, जॉब कर दो, सब सब जगह पे ट्रेनिंग मैनुअल्स अवेलेबल होते हैं, बट फिर भी हमें एक ओवर एंड अबव दैट ट्रेनिंग वी नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट, एंड दैट इज द मॉरल सपोर्ट की जो हमें अपनी खुद की पहचान करवाए। पहचान को था। और मुझे याद है कृति जी, आपके बहुत अच्छे से याद है मेरे को कि आपने भी मुझे यही बोलते थे स्टार्टिंग में, शिखा मैं तो नहीं कर पाऊंगा। और जब आपने ये बिजनेस इवन तो ज्वाइन करा था तब भी आपने मुझे कहा था, तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि आई अंडरस्टैंड कि आप जॉब करते हो, आपका प्रोफेशन इज टोटली डिफरेंट, आपका इस प्रोफेशन से कोई मतलब इस बिजनेस से लाइक दूर दूर तक एग्जैक्टली। कोई नाता नहीं है। बट अगेन दिस इज अबाउट लाइक या कंफर्ट जोन। ऑफ अगर कोर्स। आज आप सोच लिया कि हाँ मैं कंफर्ट जोन से बाहर आके इस बिजनेस को कर सकती हूँ, तब भी आप कर सकोगे। या तो वो आपने उस तरीके का अपना माइंडसेट बनाया कि यार नहीं, एग्जैक्टली। मैं कुछ एग्जैक्टली। लर्न नया करूंगी। मैं ठीक है, मैंने ये जिंदगी में पहले कभी नहीं किया, बट यस। आज मुझे मौका मिले तो व्हाई नॉट। चलो कुछ नया सीखने को ही तो मिलेगा ना। तो ऑफ लेट्स कोर्स। डू दैट, है ना। तो ये चीजें होती है। सेम थिंग मेरे साथ भी यही था। मुझे भी नहीं आता था सोशल मीडिया होता क्या है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आई कम आउट फ्रॉम माई कंफर्ट जोन। मुझे करना है यार ये तो कुछ, और फिर धीरे धीरे मजा आने लगा या कि दिस इज यार ऑल अबाउट माइंडसेट, शिखा। कुछ भी करने के लिए हमें वो माइंडसेट बनाना पड़ता है, और वो माइंडसेट हमें किसी ट्रेनिंग मैनुअल से नहीं मिलता। नहीं या मिले। या हाँ, ठीक है, हमारे जो ट्रेनिंग्स हैं या हमारे इधर मास्टरमाइंड्स होते हैं जिसमें बहुत बार माइंडसेट के बारे में वी डिस्कस्ड एंड लोग अपनी बताते हैं, सारी स्ट्रेटेजीज बताते हैं, शेयर करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा टूल है। बट माइंडसेट आई थिंक तो मुझे लगता है ये वही होता है कि आप आपके अंदर से आना चाहिए, या है ना। जब तक वो, क्योंकि मैं आपके अंदर वो डाल नहीं सकती हूँ, नहीं 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 नहीं। नहीं डाल सकती, क्योंकि है ना, मैं आपको समझा सकती हूँ पर मैं आपके दिमाग में, मैं आपको 1 घंटा लेक्चर दे दूंगी, 2 घंटा लेक्चर दे दूंगी, बट वो बाकी के जो जो 22 घंटे हैं, 20 घंटे, वो तो आपने अपने हिसाब से चलना है ना। सही। सो मुझे लगता है कि माइंडसेट हम किसी को दे नहीं सकते, हम समझा सकते हैं, उनके अपने अंदर से आना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेरा भी, फॉर मी द माइंडसेट इज लाइक कि एक हमारा खुद का करेज होता है और एक विलिंगनेस होती है, एक बर्निंग डिजायर होती है कि नहीं हमें कुछ करना है लाइफ में, या हमें इस चीज को करना है, इसको पाना है, इस लेवल को अचीव करना है। तो जो गोल्स के लिए जो हमारा माइंडसेट हो, दैट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट फॉर डिफरेंट गोल्स एंड ड्रीम्स, राइट। तो जैसे इस बिजनेस के लिए हम बात करें, तो इस बिजनेस के लिए अकॉर्डिंग टू मी, एक तो हमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए, और एक हमारा एक पॉजिटिव अप्रोच चाहिए कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं जब बाकी लोग कर सकते हैं, सब कुछ सेम है। वैसे देखा जाए तो शिखा, मेरे हिसाब से कोई भी बिजनेस हो, और इस बिजनेस की स्पेसिफिकली बात करें, तो जब हम इसमें रजिस्टर करते हैं, तो आपने जहां से शुरू करी थी, मैंने भी आज अपना बिजनेस जर्नी वहीं से शुरू करी थी, तो एवरीथिंग विल बी गिवन द सेम सेट ऑफ थिंग्स, राइट। ठीक है, इस बिजनेस यस, को रजिस्टर करने के बाद हमें सब कुछ सेम मिलता है, सेम ट्रेनिंग, मेंटरशिप एंड एवरीथिंग, सेम कम्युनिटी, सेम ऑटोमेशन सिस्टम। डेफिनेटली। बट आई थिंक आई एम द ओनली वेरिएबल फैक्टर, बाकी सब कुछ सेम है, एंड दैट्स व्हाई एवरीबॉडीज जर्नी इज डिफरेंट। क्योंकि मैं अलग हूँ, एंड मैं क्यों अलग हूँ या मैं क्यों डिफरेंट हूँ, बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट माइंडसेट देन यू, यू हैव अ डिफरेंट माइंडसेट देन अदर्स। सो जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं बनाओगे, और दूसरी बात कि कुछ लोग होते हैं जो जॉब के माइंडसेट से यहाँ पे आते हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और काफी मुझे लग रहा है कि काफी लोग हैं जो बिजनेस जॉब में से इस बिजनेस में आते हैं, या जॉब के साथ इस बिजनेस को करना चाहते हैं। then it would be very difficult for them to change their mindset, because job में क्या होता है, you have to sit for certain number of hours and you will be getting paid on a regular basis. बट डेफिनेटली। यहाँ पे आपको वो माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे द टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स इज ऑल योर्स, so the result will be yours. So यस। the amount of time and energy you put into this business, it goes parallelly with your results and expectations. Yeah, definitely. Again, like absolutely right, Kruti ji, because like मैं दूर नहीं जाती हूँ, मेरे हस्बैंड को मैं लाइक इधर मेंशन करती हूँ। सो लाइक मेरे हस्बैंड का ऐसा माइंडसेट है, राइट। तो ही अगर मैं उनको कहूँ कि तुम बिजनेस करो, तो वो नहीं करेंगे। वो Yeah, मुझे पता पता है वो नहीं करेंगे। yeah, क्यों? क्योंकि उनका एक स्टार्टिंग से ही अगेन कि मैं अलग हूँ, वो अलग है। उनका स्टार्टिंग से एक माइंडसेट बना हुआ है कि yeah. उन्होंने सुबह जॉब पे जाना है, शाम को जॉब से वापस आना है, उसके बाद अपना लाइक व्हाटएवर ही वांट्स टू डू इट, वो अपना करेंगे चाहे बच्चों के साथ। तो उनका एक वो पिछले
कितने सालों से, आई थिंक जो 18-20 सालों से वही रूटीन चला रहा Yeah. है ना। और लाइक ही ट्राई, इवन तो मैंने भी ट्राई किया उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उनको लेकर आऊं, बट मैं नहीं ला पाई क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं है वो, क्योंकि वो खुद ही नहीं आना चाहते उधर से क्योंकि बाहर ना। शिखा, ये बात है ना कि एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। क्यों सब नॉट फॉर। लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी लोग वकील नहीं बन सकते, सब लोग बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये एक तो अपना खुद का भी एक सेट ऑफ स्किल्स रहता है कि आप उसमें से बाहर चाहे जो मर्जी हो जाए, बट आप कुछ चीजों को एक्वायर नहीं कर सकते। कुछ है जो आप में इनबिल्ट है, कुछ है जो आपने एक्वायर करनी है। हाँ, सो लाइक डेफिनेटली, बिकॉज़ वो मुझे ही कहते हैं हाँ, लाइक यू आर डूइंग दिस बिज़नेस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, लाइक यू नो, एंड लाइक तुझे व्हाटएवर द सपोर्ट यू वांट इट, आई कैन डेफिनेटली गिव इट, लाइक घर के कामों में या वैसे मैं तेरे को दूँगा। बट हाँ, लाइक ही टोल्ड मी दैट कि शिखा, लाइक मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, मैं उस कंफर्ट ज़ोन में हूँ और मैं नहीं चाहता मैं उससे बाहर हूँ। और अब तो थोड़ा उनको और कंफर्ट हो गया क्योंकि उनको पता है कि ये कर रही है। एंड तो उनको द सेम थिंग विल बी अप्लाइड टू यू एज वेल, बिकॉज आप उनकी जगह पे जॉब नहीं कर सकते। जो वो मैं कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते, जो वो कर रहे, जो आप कर रहे हो वो नहीं कर हाँ, सकते। वो हम नहीं कर सकते। So सेम again, it's different. Yeah, it differs from person to person, and definitely सबका एक माइंड, तभी तो बात कर रहे हैं ना माइंडसेट की। हाँ, कि आपका माइंडसेट कैसा है। और वो इसीलिए इस बिजनेस को मैं रिलेट करना चाहूँ तो इसीलिए हम इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो इनिशियली हमें जो 30 डेज का जो एक जो ट्रायल पीरियड जो फेज देते हैं, दैट इज जस्ट टू चेक आउट कि वेदर यू आर फिट फॉर दिस बिजनेस और नॉट एक्चुअली। अदरवाइज इस बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए वी डोंट नीड 30 डेज। 30 डेज आर मोर देन सफिशिएंट टू टेक एनी डैम डिसीजन, यू नो। बट स्टिल 30 days are given because you are committed to something different thing that is not usual part of your life, right? So अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो then you need to, जो तो मेरे हिसाब से तो ये जो 30 days दे रहे हैं वो just to prepare your mindset, and then you can check it out कि हाँ आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। Yeah, definitely. We will explain this 30 days trial period. Sure. Sure. I will have a question this one. But yes, absolutely right. Kruti ji, मेरे पास like lots of people said that कि आप लोग हमेशा mindset की बात करते हो. Actually में क्या है ये mindset, right? तो आज आपने बहुत अच्छे से explain कर दिया actually में। मैं Thank you शायद so much. मैं ट्राई कर रही थी बट आपने अपना बीच में थोड़ा सा उसको करके ना तो बहुत अच्छा बता दिया कि एक्सप्लेन कर दिया कि यस इट इज रियली लाइक इट्स लाइक आई थिंक तो किसी भी चीज को करने के लिए 80% आपका माइंडसेट होता है, बाकी 20% आपकी स्किल्स होते हैं। वाई? बिकॉज स्किल्स, आप कोई भी नई चीज शुरू करोगे, ठीक है, जो चाहे वो आपके प्रोफेशन की हो या ना हो, ठीक है, आप वहां जाके अपनी एक्सपीरियंस के साथ उस स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, Sure. बट माइंडसेट नहीं। नहीं। माइंडसेट आप नहीं कर सकते हो, राइट? क्योंकि माइंडसेट, आप इस अगर किसी चीज में आ रहे हो तो एक वो माइंडसेट लेकर आ रहे हो कि वो आपके लिए कैसे वर्क करेगा, राइट? Exactly. Yeah. वो मुझे लगता है कि 80% किसी भी को काम को करने के लिए आई थिंक सो इट हमारा माइंडसेट सबसे ज्यादा जरूरी है। Sure. For sure. Yeah. सो यप, सो सो नेक्स्ट आप थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में भी हम एक्सप्लेन कर दें हमारे व्यूअर्स को, ताकि पता चले कि बिजनेस है क्या और इस बिजनेस में आने के लिए उनका भी कैसा माइंडसेट होना चाहिए, so they can relate, you know, their mindset with this business process, just you know, the what this business is all about and everything. सो बेसिकली जैसे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, मैं तो कहूँ किसी भी चीज को ज्वाइन करने के लिए आपका माइंडसेट एक बिजनेस को होना चाहिए कि यस दिस इज अ बिजनेस, बिकॉज हम एवरी टाइम आपको बताते हैं कि ये जॉब नहीं है, दिस इज अ प्योर बिजनेस एंड इट्स नॉट अ क्विक स्कीम। सो Yeah. कोई भी जैसे अदर बिजनेसेस होते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कोई भी बिजनेस आपको रातों रात ऐसे नहीं है कि आपने आज ज्वाइन किया और कल से आपका बिजनेस आपको रिजल्ट देने लगेगा। एवरी बिजनेस, इवन तो मैं कहती हूँ बिजनेस ही क्यों, एवरी जॉब भी पहले आपसे Yeah. आपका इनपुट मांगती है, right? Okay. Same thing here with your consistency, your effort you have to do. If you want to talk about, अगर हम इस बिजनेस की बात करते हैं तो आपको आके अब पहले लर्न करना होगा। वो ये कहते हैं ना, पहले लर्निंग फिर रनिंग, हाँ। है ना? सो पहले आपको इस बिजनेस की स्ट्रेटेजीज को समझना होगा, इस बिजनेस को की ट्रेनिंग को समझना होगा, मास्टरमाइंड को देखना होगा, लोगों को जो इस कम्युनिटी में जो लोग सक्सेस हो रहे हैं, यू नो, उनको समझना होगा कि क्या स्ट्रेटेजीज उन्होंने अपनाई है। देन आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओगे। आपको पूरा अपना लाइक यू नो, अगर आपको कंफर्ट जोन से निकल के आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, देन यू विल बी एबल टू डू यू नो दिस बिजनेस। Yeah, you can make at least some हार्ड, decision. या इट्स नॉट हार्ड, बिकॉज हर एक चीज हम लोगों को प्रोवाइड की जाती है।
हर Yeah, एक रिसोर्स हमें प्रोवाइड किया है, वी जस्ट नीड टू स्टडी। और वो yeah. हमारे लिए ही बेटर है, बिकॉज कैसे बताऊं कि किसी भी चीज को, ऑब्वियसली अगर आप जॉब पे भी, अगर जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो एक दिन पहले आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करते हो, Sure. करोगे राइट, स्टडी करोगे आप, ठीक है। तो या एग्जाम हो तो पहले स्टडी करते हो, सेम थिंग है गाइस। सो यू नीड टू स्टडी फर्स्ट कि एक्चुअली में ये बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज क्या हैं, Hmm. कैसे इस दिस ऑनलाइन बिजनेस इज नंबर वन राइट नाउ, Hmm. कैसे लाइक डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में, और फ्यूचर ही यही है। तो Hmm. इफ यू वांट द फास्टर रिजल्ट, give some time at least to understand this business, and then you see the results, Sure. Definitely. you know. Definitely. So yeah, or what else, what आपने और कौन सा? बिजनेस प्रोसेस, या थोड़ा सा बिजनेस प्रोसेस क्या है, हम कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट। सो शिखा, टू माय अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक दिस इज द बिजनेस, यू नो, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ होल पैकेज। अगर आप इस बिजनेस के साथ जब भी रजिस्टर करते हो, देन यू विल बी हैविंग फोर थिंग्स, लाइक द ट्रेनिंग होती है आपके साथ, सेकेंड आपके पास मेंटरशिप एंड कोच का सपोर्ट होता है, थर्ड आपके पास होता है ग्लोबल कम्युनिटी का सपोर्ट, एंड द फोर्थ इज सिस्टम ऑटोमेशन। तो Yes, लाइक जो ट्रेनिंग की बात करें, तो ट्रेनिंग तो शिखा जी यहाँ पे ऐसी बनाई गई कि इट्स लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग। एज लॉन्ग एज यू आर इन दिस बिजनेस, द ट्रेनिंग विल रिमेन विथ यू। yeah, ऐसा नहीं है, तो जैसे हम दूसरी जॉब या प्रोफेशन की बात करें, तो वहां पे हमें ट्रेनिंग डेफिनेटली दी जाती है, बट दैट विल डिसअपियर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वी डोंट हैव एक्सेस टू, यू नो, गो थ्रू दिस दैट ट्रेनिंग। बट यहाँ पे जो ट्रेनिंग है, वो एक तो इजी टू फॉलो है, यूजर फ्रेंडली है। आप एक तरफ ट्रेनिंग देखते हो, दूसरी तरफ आप उसको दूसरे गैजेट से आप उसको अप्लाई भी करते हो। सो इट्स वेरी इंस्टेंटली रेप्लीकेबल टू योर बिजनेस। आप इसको तुरंत अप्लाई कर दो। सेकेंड, yeah, आपको कोच और मेंटर का जो सपोर्ट मिलता है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, वैसे तो ट्रेनिंग इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट गाइड फॉर अस, बट जैसे कि हमारे बिजनेस में अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग अकेडमिक और रीजियन से लोग ज्वाइन करते हैं। तो समटाइम्स इट मे हैपन दैट ओवर एंड अबव द ट्रेनिंग दे नीड सम एडिशनल सपोर्ट, और उसी की वजह से हमें मेंटर और कोच का सपोर्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग प्रोवाइड किया जाता है, एंड दे गाइड यू एट एवरी स्टेप ऑफ द वे, like, you know, starting from setting up your business profile on different social media platform to any damn thing. Whenever you have any questions, they are, you know, they are just one click away from you. yes, So वो भी definitely. बहुत एक अच्छा बेनिफिट रहता है। और थर्ड जो आता है, दैट इज द ग्लोबल कम्युनिटी। तो आपको, लाइक, यू नो, पूरे लोग, लाइक दुनिया के हर 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 एक लोग को के लोग मिलने का मौका मिलता है। आप लोगों को जानते हो, वहाँ का कल्चर क्या है, बिजनेस कितना डेवलप हो रहा है, कहाँ के क्या पोटेंशियल से क्या स्कोप है, एवरीथिंग एवरीथिंग यू कैन कम टू नो। या, और यू नो, इफ जैसे कि अगर किसी को लैंग्वेज का कोई है, तो आपको आप दूसरे कोचेस से या दूसरे मेंटोर से भी हेल्प ले सकते हो, एग्जैक्टली, या। ठीक है। तो आपको यहाँ पे वो भी बहुत है कि कोई ऐसा लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप इस बिजनेस को अपने लैंग्वेज में करो, ठीक है, लाइक वट एवर द लैंग्वेज यू वांट टू डू, आपको कोई मतलब स्टॉप नहीं करेगा। या कभी आपका क्लाइंट कोई दूसरे कंट्री से बिलोंग करता है, एंड इफ यू नीड टू स्टडी देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर कंट्रीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो अगेन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अप्रोच और टू कांटेक्ट एनीबॉडी इन आवर कम्युनिटी। सो इसीलिए ये ग्लोबल कम्युनिटी भी बहुत हेल्प हेल्प करती है आगे चल के इस बिजनेस में। और लास्ट है सिस्टम ऑटोमेशन, जिसके बारे में हम हमेशा बोलते रहते हैं कि दिस इज द ओनली थिंग दैट गिव्स अस, यू नो, द टाइम फ्रीडम। Because, you know, we sleep sometimes, but internet never sleeps, and the business and the system keeps on working on behalf of us 24/7. So ये एक बहुत बड़ा support रहता है, and that's why we are enjoying the time freedom as well, being in this business. दैट्स व्हाई सेम विद मी, लाइक मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है इस बिजनेस का, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी लगता है, Yeah, लाइक टाइम फ्रीडम है इसमें। बिकॉज हम कहीं भी चले जाए ना, जैसे वेकेशन पे भी गए हैं, आई नो दैट आई कैन डू, ये मेरा बिजनेस है और मैं इसको किसी भी टाइम पे कर सकती हूँ, yes, राइट। yeah, और जैसे लाइक बच्चे स्कूल जाते हैं तो आई कैन डू दिस बिजनेस exactly. स्कूल, राइट। सो उस इससे क्या होता है कि मैं घर पे भी पूरा फोकस दे कर पा रही हूँ, बच्चों पे भी पूरा फोकस कर पा रही हूँ, और बिजनेस पे भी फोकस कर पा रही हूँ, हाँ, एंड आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स। एक तो पूरे दिन का टाइम चाहिए नहीं, बहुत ही कम टाइम में आप इस बिजनेस को कर सकते हो, पूरा पूरा दिन बैठना नहीं पड़ता। और ऐसा भी नहीं है कि इस बिजनेस को चलाने के लिए यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। इवन इफ यू आर अवे, इफ यू आर ऑफलाइन, योर बिजनेस स्टिल कीप्स वर्किंग फॉर स्टिल यू। सो डेफिनेटली। ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है इस बिजनेस का, स्पेशली फॉर मदर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर चलती है, जिनके घर में बच्चे हैं, जॉइंट फैमिलीज में रहती है, या कोई पर्सनल इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज भी है,
तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एनीबडी। Anybody's definitely perfect. Yeah. तो यही था, बट इस बिजनेस को थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करें, जैसे काफी लोगों को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारे बिजनेस में कोई सेलिंग नहीं है, कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, तो थोड़ा सा बिजनेस। मैं आपको इधर बताऊं, लाइक किसी मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिजनेस ऐसा होगा जिसके अंदर कस्टमर्स और प्रोडक्ट नहीं होगा. सो एग्जैक्टली। इट्स नॉट लाइक दैट कि यहाँ पर नहीं है. डेफिनेटली देयर इज अ प्रोडक्ट इन्वॉल्व, डेफिनेटली एवरीथिंग इज हियर, बट द थिंग इज द पैटर्न इज डिफरेंट नाउ. लाइक हम लोग यहाँ पर सेलिंग डायरेक्ट नहीं करते हैं. व्हाट वी आर डूइंग, हम सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं. और हम जैसे पहले के टाइम में, अभी आजकल भी होता है, ऐसा नहीं कि डोर टू डोर लोग मार्केटिंग करते हैं आपसे. जैसे कभी आपके घर में बेल वाले आ जाते हैं, या कभी कोई कोई भी प्रोडक्ट का. हम यहाँ पर सोशल मीडिया के पावर को यूज कर रहे हैं, और यस। सोशल मीडिया की पावर को भी यूज करते हुए हम कोई डायरेक्ट प्रमोट प्रोडक्ट नहीं करते हैं. व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली, वी आर प्रमोटिंग द बिजनेस बेनिफिट्स. एक्चुअली क्यों हम इस बिजनेस में हैं, किन बेनिफिट्स की वजह से हम इस बिजनेस को रन कर रहे हैं, क्या इसकी अर्निंग्स हैं, वो सब हम लोग जो है सोशल मीडिया की पावर को यूज करते हुए कर रहे हैं. दैट्स लाइक सिंपल इजी पीजी. यस। बहुत लोगों के माइंड में ही होता है, अरे मार्केटिंग यानी कि प्रोडक्ट. या गाइस, बिना प्रोडक्ट के क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं है. Either product or service is definitely involved in any business. Yeah. In the business, so businesses, so here we are, but we are not doing any direct selling. That's why this is called the automation system. Our system is doing the selling part. Exactly. Exactly. और शिखा जी, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि इस बिजनेस में आने के लिए क्या स्टेप्स रहते हैं और क्या प्रोसेस रहता है दैट एनीबडी नीड्स टू फॉलो, और For वो हाउ सून दे कैन जॉइन दिस बिजनेस? और आप जब चाहें तभी ये बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, बट मेक श्योर ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट लाइक यू नीड टू मेक द माइंडसेट आपका. फर्स्ट स्टेप जो इस बिजनेस का है, जिसके लिए आई डोंट थिंक सो कि आपको कई लोगों को जैसे होता है कि हाँ हम फियर है हमें, तो दिस इज वेरी सिंपल. लाइक यू जस्ट नीड टू रजिस्टर योर नेम एंड ईमेल आईडी ऑन योर मेंटोर्स वेबसाइट. ठीक है, और उसके बाद वंस यू रजिस्टर ऑन योर मेंटोर्स वेबसाइट, यू विल बी एबल टू गेट एक्सेस इन अवर प्राइवेट ग्रुप, जहां पर आप देख सकते हो कि कितने लोग, दुनिया भर के लोग, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं. तो these are the first step, and again we are not asking you anything, we are just telling you that enter your name and email id and check our free resources. यस। सो पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस करो, जितने भी फ्री रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, जस्ट गो हेड विद दैट. और गाइस, अगर आपको कोई इफ योर मेंटर सेड दैट कि ओके हम लोग आपको अपने प्राइवेट ग्रुप में ऐड करें, तो डोंट बी स्केयर्ड. अगर आप वीडियोस आप वॉच करो, वहां पे हमारे शॉर्ट वेबिनार है 20 मिनट्स का, वो वॉच करो, टेस्टिमोनियल, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है नो, तो यू कैन exit, leave the group anytime, no one can stop you. So आपके पास बहुत सारी free resources हैं. This is the actually main step to join the business. And after that, once you watch all, once you get access in our private group and check all the resources, and after that if you want to decide that कि हाँ मुझे आगे का step लेना है, जो कि हम trial period बोलते हैं, जिसको जो कि 30 डेज का ट्रायल पीरियड है. कृति जी ने पहले भी आपको ये मेंशन किया कि आपको ट्रायल पीरियड, इफ यू वांट इट, गो अहेड विद द ट्रायल पीरियड, जिसके अंदर आपको 149 यू नीड टू पे, एंड वंस यू पे एंड इट्स रिफंडेबल विद इन 30 days. What you will get once you pay 149, you will be able to get our whole business model, how this business works, without direct selling, and how, like क्या कमीशंस हैं, क्या है, सारा कुछ आपको पूरा बिजनेस मॉडल एक डिटेल में आपको मिलेगा. साथ ही साथ once you take that trial period, you will be able to get access in our bigger private business group, जहाँ पे आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं बिजनेस को. तो these are the simple steps, and again ट्रायल पीरियड में भी you are not losing anything. Of course, yeah. आपको पूरा बिजनेस मॉडल मिल रहा है, और and it's refundable. Yes. राइट. और आप, कई बार लोग होते हैं कि वाई शुड वी पे 149, बिकॉज आप सारी इन्फॉर्मेशन वो दे दें.
ऐसा कभी होता है कि आपको कहीं पे भी चले जाएँ, आपको कोई भी, चाहे आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो या वैसे, आपको कोई भी फ्री में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। सो दिस इज़ द कंपनीज़ पॉलिसी कि Yeah. आपको लाइक इफ यू वांट टू नो द बिज़नेस मॉडल, एंड कंपनी ने ये रखा है कि आपके पास 30 डेज़ मनी गारंटीड बैक को मिलेगा। सो अगेन यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। या और वो थर्ड और वो भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि कंपनी की भी खुद के कंपनी की खुद की भी तो प्राइवेसी पॉलिसी होती है। जैसे आपको रिस्क लग रहा है वैसे कंपनी को भी खुद को एक रिस्क लग रहा है कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन पूरा बिजनेस मॉडल वो आपके सामने वो ओपन कर रहा है। कंपनी डजंट नो वेदर यू विल बी कंटिन्यू विद दिस बिजनेस और नॉट। आप लीव भी कर सकते हो बट इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा रहेगी। So this is just to filter out that those who are serious and those who are really would like to come into the business और जिनको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लोरिंग दिस बिजनेस इन मच मोर डिटेल। और उन्हीं के दौरान अगर आपको ड्यूरिंग दैट 30 डेज ट्रायल पीरियड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अगेन यू कैन रीच आउट टू अस एनी लाइक योर मेंटर और कोच। तो वो यस, भी आप उनसे भी सारे क्वेश्चंस क्लियर आउट कर सकते हो आप। डेफिनेटली। और पता है क्या, जब आप उस ग्रुप में आते हो ना, तो एक आपको खुद को ही पता चल जाता है कि हाउ मच यू आर सीरियस टुवर्ड्स योर गोल्स एंड ड्रीम्स। या तो ये बहुत बहुत जरूरी है स्टेप। मेरी नज़र से अगर देखो तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज वहां जाकर आपको एटलीस्ट आप, चाहे आपने हम लाइक किसी की हमारी एड देखी, उस पे जस्ट वैसे ही क्लिक कर लिया, राइट? और मैंने आपको बताया कि आपने कहा हाँ मैंने ऐसे ही कर लिया क्लिक ना, मेरा ऐसा कुछ है नहीं। हर किसी का लाइफ में, हर किसी का कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कोई ड्रीम्स हैं, कोई गोल्स हैं, कोई इसको पूरा कर पाते हैं, कहीं नहीं कर पाते हैं, या कहीं भूल जाते हैं। लेकिन जब हम इस ग्रुप में आप देखोगे ना, और लोगों को देखोगे, तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी में अपने आप को देख पाओगे कि यार ये तो मैं हूँ, ये तो मेरी स्टोरी थी। अरे मेरा भी तो किसी टाइम पर ऐसा एक ड्रीम था, वो तो या पता नहीं मैं भूल गई। तो आप रिलेट कर पाओगे। तो आई थिंक सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कि आप उस ग्रुप में आओ और उसको देखो। तो लाइक मैंने ऐसे ही किया था। तो जब मैंने देखा था, अच्छा यार ऐसे होता है, अरे ऐसा भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है ना। तो लाइक वी you can रिलेट। relate yourself with other person's why, other person's reason to be in this business. And if you जब आपको वो assimilate करता है then you can think of yourself, you can put yourself in that person's यस, place. And that's your real thinking and that's your real thought process starts from there. और मैं उसी को तो कहते हैं कि सीरियस पीपल, नॉट Yeah, क्यूरियस पीपल। exactly, exactly. So yes, so these are the steps, guys, you need to follow to join our Hmm. business. And once you made your mind, and if you think that you want to continue with this business, then there is the next step where you have to get your distributor ID and everything. And I think within a week you can start your business. So I Yeah. think this is the most simplest business model. मैंने अपनी लाइफ में जितना भी कुछ भी एक्सप्लोर किया है, बट दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वन। अगर शिखा हमें कोई स्टोर भी ओपन करना ना, इट टेक्स समटाइम्स 2-3 months टू गेट एवरीथिंग एंड टू स्टार्ट फुल फ्लेज। वो भी, और और आपको कितनी मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है उधर। वो तो इट्स अ और फिर डिफरेंट लाइक स्टोरी। आपको एम्प्लॉइज हायर करने पड़ेंगे। आपको पहले तो स्टोर बाय करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आपको कुछ Inventory you have to buy, you have to invest in inventory, you have to hire the people or staff, you have to maintain all the protocols, like like आपको insurance लेना पड़ेगा, fire insurance, ये वो, everything you need to manage. Then you have to decide your opening and closing hours, and you have to stick to that hours no matter हाँ, what. अगर स्नो बढ़ गई है तो यू स्टिल हैव टू गो देयर, Yes, राइट? yeah, एंड ये लाइक आपको ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाना है। आप अपने कंफर्ट जोन में, अपने होम में बैठ के कहीं से भी, आपका कोई exactly. ऐसा नहीं है कि अच्छा ये मेरा कमरा है, मैं यहीं पे बैठ के काम करना है, नहीं। Yeah. यू कैन डू दिस बिजनेस, किसी भी कोने से इस बिजनेस को कर सकते हो, अपने घर के भी। तो That's the beauty of this business. I really love it. Yeah. आई थिंक शिखा हमने काफी इंफॉर्मेशन कवर कर ली इस बार, और आई होप कि मेरे व्यूअर्स को भी काफी क्लैरिटी हुई होगी इससे, और जो भी इस वीडियो को देखेंगे आई होप दे विल बी कमिंग विथ मोर एंड मोर क्लियर माइंडसेट। सो जो यस, उनके जो भी इनिशियल क्वेश्चंस थे वो सारे हमने क्लियर आउट करने की कोशिश करी, एंड आई होप दे दिस वीडियो विल हेल्प देम. So here I would like to take your leave and thank you so much for giving your time to be here on such a big platform. थैंक And यू।
I'll keep seeking you again and again on my platform. I'm more happy than Okay, okay. so proud Thank of you you. so Okay, much. Thank you, everybody. Thank you. bye everyone. Bye bye.